Hello, good morning, student of Standard 7 English Medium. Yesterday already we learned about the Standard 7 chapter number 3 exploring advertisement. In this session we are taking activities 5, 6, 7 and 8. So please open your notebook, take your ball pen and do write from this information from your mobile. Okay, let's start. So, activity number 5. Discuss this question as a class. Listen to the answer of your classmate. Save paper, save trees, save the worlds. There are so many questions are there. Who paid this for advertisement? ये जो जाहिरात है, ये जो विज्ञापन है, उसके पैसे कौन भरता है? What is the goal of the advertiser? जिसने ये विज्ञापन दिया है उसका हेतु क्या है, उसे क्या सिद्धि मिलेगी? तीसरा, to whom is this advertisement trying to pursue? ये किसको लुभा रहा है, किसको कन्विंस कर रहा है? ये जाहिरात किसको कन्विंस कर रही है? डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइज़र अचीव्ड द गोल? क्या आपको यकीन है कि ये विज्ञापन देने वाले को उसकी सिद्धि मिलेगी? सो ऑलरेडी देयर आंसर आई हैव wrote here. Question number 1. Who paid for this advertisement? Answer. The government paid for this advertisement. What is the goal of the advertiser? The goal of the advertiser is to save tree and save environment. So not only one tree, but it's more than one tree. So already यहाँ सेव ट्री लिखा है, आपको ट्रीज उसको रीडिंग करना है, एस लगाना, बराबर. नंबर 3. To whom is this advertisement trying to pursue? This advertisement, answer 3, this advertisement trying to pursue all the people of the world who are interested to save trees. Number 4. Do you think that advertiser achieved the goal? Answer 4. Those people who love nature, they will surely believe in this ad and will do something for this. देखा आपने, कभी गवर्नमेंट भी और पर्यावरण को बचाने के लिए गवर्नमेंट भी उसकी जाहिरात करती है, उसका विज्ञापन देती है, लोगों को समझाती है. Classmate will have a different opinion about question 4. How many classmates think that the advertisement worked well for the advertiser? In other words, they would agree with the ideas of the ad. How many classmates think that the advertisement did not work or they would not agree with the idea? अभी आपको पैराग्राफ दिया गया है, उसके अंदर आपको आपका ओपिनियन लिखना है. एक्टिविटी के अंदर ऑलरेडी गिवन यू अ पैराग्राफ एंड इट हैज़ अ ब्लैंक. यू हैव टू राइट डाउन योर ओपिनियन. ओके, सो लेट्स रीड. Use the paragraph below to help you write about this activity. In my class we looked. आपने कभी किधर कुछ जाहिरात देखी हो, विज्ञापन देखा होगा, तो इसकी बात कर रहे हैं. तो in my class we looked at an advertisement for Parle-G biscuits. It was created and paid for by Parle Biscuit Product Company. It is trying to pursue children. क्योंकि बिस्किट तो ज़्यादा करके बच्चे खाते हैं,
तो बच्चे को वो लोग लुभाने के लिए कर रहे हैं। टू बाय पार्ले जी बिस्किट। माई क्लासमेट हैड डिफरेंट ओपिनियन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। Most of classmates thought the advertisement worked. They would agree with the idea that increased sale of biscuit. Few classmates thought the advertisement did not work. They would not agree that ad can increase sale. वो क्या कहते कि भाई ये एड सेल इंक्रीज कर सकते हो, तो बिक्री बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा वो नहीं मानते हैं। आई थिंक एडवर्टाइजमेंट कैन इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट। जो चीज़ है उसका सेल बढ़ा सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। एक्टिविटी नंबर 6। देखिए, आपको पहले बताया था कि 2-3 वर्ड्स इकट्ठे होते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है, बराबर ना। अभी देखिए, इसमें वर्ब्स आर, एक्टिविटी नंबर 6 में वर्ब्स आर वर्ड दैट शोज एक्शन और डूइंग। हाँ, वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड्स होता है, बराबर ना। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ब ग्रो मीन्स टू बिकम लार्जर, बिकम ग्रो। इंग्लिश हैज़ मैनी फ्रेसल वर्ब्स। फ्रेसल वर्ब्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? देखो, फ्रेसल वर्ब्स नीड अ स्मॉल वर्ड मीन्स का प्रेपोजिशन विथ दैम टू मेक देयर मीनिंग। तो फ्रेसल वर्ड्स जो होते हैं ना, वो कैसे बनते हैं कि वर्ब जो होता है ना, उसके साथ में एक छोटा वर्ड्स जिसको प्रेपोजिशन कहते हैं, वो लगाने से मीनिंग बदल जाता है। एक एग्जाम्पल दिया है। For example, grow means to become larger, but the grow up means to mature, है ना। अगर अपन एक छोटा सा बीज जमीन में डालते तो इट विल ग्रो एंड बिकम अ प्लांट। तो ग्रो का मतलब होता है बिकम लार्जर। तो ग्रो के साथ में अप लगाया, अप इज़ द प्रेपोजिशन, तो ग्रो अप शब्द बना, जिसको बोलते हैं फ्रेसल वर्ब्स। तो ग्रो अप का मतलब ये होता है कि टू मैच्योर, टू बी अ मैच्योर। छोटा बच्चा है, व्हेन ही विल ग्रो अप ही बिकम मैच्योर। छोटा बच्चा बड़ा होगा तो मैच्योर बनेगा, है ना। लुक एट द आर्टिकल हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रन केयरफुली। फाइंड फ्रेजेस वेयर द प्रेपोजिशन सीम्स टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ब। Underline these phrases. How many phrasal verb did you find? ये आपके लिए एक होमवर्क है। लेसन को ठीक से रीड करना और इसके अंदर कितने फ्रेसल वर्ब दिए उसको बुक के अंदर अंडरलाइन करके एक नोट में लिखना, बराबर। कंपेयर योर नंबर्स टू द नंबर्स ऑफ योर क्लासमेट रॉट। Which classmate wrote the largest number more? Write that classmate name and the number of the phrasal verb here. उसका नाम लिखना और कौन से लिखे वो भी लिखना, बराबर। Now page number 30. Have लुक केयरफुली एट द फ्रेसल वर्ब यू क्लासमेट फाउंड। ये तो एक्टिविटी आप स्कूल में होंगे तब कर सकते हैं, या तो आप घर पे बैठ के अपने आप भी कर सकते हो। यू कैन एबल टू डू दिस एट योर होम। इफ़ यू हैव अ बुक देन यू काइंडली जस्ट सिलेक्ट एंड द फाइंड द फ्रेसल वर्ब फ्रॉम यूनिट नंबर 3 एक्सप्लोरिंग advertising. Do you agree that they are all correct? Which phrasal verb did you classmate find that you missed? Write them name. It's a one of the activity. ये एक प्रवृत्ति है, आप इसके अंदर ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा, बराबर।
इफ़ यू फाउंड द मोस्ट फ्रेजल वर्ब इन योर क्लास, किसने लिखा उसका नाम लिखना, उसको कॉन्ग्रेचुलेसन करना। और ये जो ब्लॉक्स दिया है उसके अंदर फ्रेजल वर्ब लिखना, बराबर। अभी नेक्स्ट पेज है, एक्टिविटी नंबर 7 है। ट्राई दिस कॉमन टाइप ऑफ एक्टिविटी, चूज द करेक्ट ऑप्शन, रिप्लेस द एक्सप्लेनेशन इन ब्रैकेट। फर्स्ट, पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो टेक केयर ऑफ, ये जो फ्रेजल है उसको हमें इसके अंदर दूसरे उसके मीनिंग दिए, टू लुक एट, टू लुक फॉर, टू लुक आफ्टर। तो इसमें से कौन सा आता है, ऑलरेडी मैंने टिक करके दिया है आपको, तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हो। सेकंड, माई सन सेज ही विल स्टॉप टेलिंग लाइज। एक लड़का झूठ बोलता था, तो उसने बोलने का स्टॉप किया है, तो ही विल गिव इन। तो अपने दरवाजे पर आ जाए।